Next chapter is electronic mail. So what is email? See, email stands for electronic mail. Okay, email is a short term for electronic mail is the full form. We are saying email. E stands for electronic. E stands for electronic. So electronic mail. So what is electronic mail? What is email? It is like a letter only. Okay, that is sent via the internet to the recipient. Okay, it is a type of letter which is sent via the internet to a recipient. The email, see, to send email, what is the requirement? क्या requirement है? Email address होना चाहिए. Email address is required to receive mail, right? और वो address कैसा होना चाहिए? Email address should be unique. Email address should be unique. ठीक है? So sending or receiving, what is email? Sending or receiving document over internet is called as email. Sending or receiving a document over internet is called as email. जो document है, see, document means we are sending email. We are sending email means what we are doing? We are sending messages. We are sending documents. So documents means it can be in the form of images, audio, we can send audio, we can send images, video, text file, PDF file, Word file. Okay, any file we can send through email. So to send email, what is the requirement? We should have email address, email ID of a person to whom we want to send email, right? क्या होना चाहिए हमारे पास? email address होना चाहिए. So email is the, you can say it is the fastest and the cheapest mode of communication. ठीक है, fastest mode है ना, एकदम quickly you can send within a second you can send the email. So it is the fastest and cheapest mode of communication, right? For example, see, अगर कोई document long documents है, any file, it is images, whether it is images, audio, video, Excel file or any other file, okay, we can send email में, we can send, right, through email we can send as attachment. email में जो भी फाइल हम सेंड करते हैं उसको हम लोग वी आर सेइंग एज, उसको हम लोग बोलते हैं अटैचमेंट. क्या बोलते हैं? अटैचमेंट. ठीक है. These are the some of the importance of email. It saves money, it saves time, instant response, regular communication we can do with the help of email. Yeah, communication can be done through email, right? By sending some messages, notifications, matlab reminders. It is a type of communication only. No need to speak to recipient, right? No need to speak. We can send officially. See, officially we can send the email. So no need to speak, right? This is the importance. Messages can be read as convenient. ऐसा नहीं है कि सेंडर जब मैसेज भेज रहा है वही टाइम पे रीड करना है, ऐसा नहीं है. ठीक है. एट अ कन्वीनियंट टाइम वी कैन रीड द मैसेज. इनकमिंग मैसेजेस आर सेव्ड. जो भी इनकमिंग मैसेजेस आएंगे, ठीक है, while you are not online also, ठीक है, while you are not connected to the इंटरनेट, फिर भी तुम्हारे इनकमिंग मैसेजेस कहाँ पे रहेंगे? सेव्ड रहेगा, राइट? जब तुम ऑनलाइन होगे यू विल बी एबल टू सी दी, ऑनलाइन मीन्स व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट यू विल बी एबल टू सी दी मैसेजेस, राइट? मैसेजेस पूरे तुम्हारे इनबॉक्स में स्टोर्ड रहते हैं, राइट? जब तक तुम उसको डिलीट नहीं करोगे, जब तक तुम उसको डिलीट नहीं करोगे तुम्हारे मैसेजेस क्या रहेंगे? स्टोर रहेंगे सिस्टम में, until and unless you are not deleting it. This is the important advantage of email. It reduces volume of paper. Okay, no need to write. See, sometimes what we are doing, it is secure also. Email is secure also. Why it is secure? See, if we are having some password like for net banking, for online transaction like net banking and mobile banking facility is there, right? तो क्या कर सकते हैं हम लोग? उसका जो पासवर्ड है नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के लिए, जो पासवर्ड है, लाइक हमारा ईमेल का पासवर्ड होता है, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड. डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट से वी आर कनेक्टेड, फेसबुक और एनी अदर साइट, तो उसके पासवर्ड है. ठीक है. So instead of writing on the paper, we can store the password on email also. Are you getting it?
इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन पेपर, अगर पेपर पे पासवर्ड लिखेंगे इट इज नॉट सिक्योर. If you're writing the password on paper, it is not secure. Anyone can means listen to your anyone can hack your password. Okay, anyone can take unwanted access. ठीक है, तो क्या है, टू सिक्योर पासवर्ड व्हाट वी कैन डू, पासवर्ड को सिक्योर रखने के लिए वी कैन स्टोर ऑन ईमेल. ईमेल इज यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, बहुत सारे इसके एडवांटेज है ईमेल के. वी कैन स्टोर कॉन्टैक्ट ऑन ईमेल. समझ रहे हो, हमारे जो कॉन्टैक्ट है हम लोग ईमेल पे स्टोर कर सकते हैं ना. अगर इफ यू आर स्टोरिंग ऑन सिम, समटाइम क्या हो, सिम ये हो गया हमारा, ठीक है, सिम में कुछ फॉल्ट आ गया, सिम करप्ट हो गया या फोन हमारा लॉस्ट हो गया, तो क्या एडवांटेज है, कॉन्टैक्ट्स कैसे मिलेंगे. इफ यू हैव स्टोर्ड कॉन्टैक्ट्स ऑन ईमेल, ईमेल में अगर तुमने कॉन्टैक्ट स्टोर किए हो तो फोन अगर खराब भी हो गया तुम्हारा, पूरा सब कुछ रीसेट भी हो गया, फिर भी तुमको तुम्हारा कॉन्टैक्ट मिल जाएगा. कैसे, बिकॉज तुमने ईमेल पे स्टोर किया, अगेन वो ईमेल आईडी पासवर्ड डालो, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे. आई विल शो ये ईमेल में कॉन्टैक्ट कहाँ रहता है. तो इट इज बेटर, हमेशा हम लोग को कॉन्टैक्ट्स जो है हमारे ईमेल पे ही स्टोर करना चाहिए. ठीक है, तो नाउ सी, ये जो थ्री यहाँ पे वर्ड मेंशन किए हुए कीवर्ड्स, SMTP, POP and IMAP. SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. POP stands for Post Office Protocol. IMAP stands for Internet Message Access Protocol. See, what is protocol? First thing, if you will observe, in all the three words क्या है, this protocol word is there. Simple Mail Transfer Protocol, Post Office Protocol, Internet Message Access Protocol. So in all the three keywords, protocol is there. Protocol means, protocol का meaning है set of rules. Protocol means set of rules. Okay, set of rules that is to be followed during data communication. Listen carefully. Protocol means it is a set of rules that is to be followed during data communication. इसका meaning ये है, जब कोई पार्टी आपस में बात करती है, पार्टी मीन्स व्हेन टू सी, सपोज व्हेन टू ए एंड बी आर कम्युनिकेटिंग, ठीक है, ए और बी दो पार्टी है, दे वांट टू कम्युनिकेट, ए एंड बी, लेट अस कंसीडर. तो इफ ए एंड बी वांट टू कम्युनिकेट, दोनों सी, इफ ए अंडरस्टैंड्स ओनली इंग्लिश लैंग्वेज एंड बी अंडरस्टैंड ओनली फ्रेंच लैंग्वेज, so whether they be able to communicate? No, नहीं कर पाएंगे ना. ए को सिर्फ इंग्लिश आता है, बी को सिर्फ फ्रेंच आता है, और दोनों में कम्युनिकेशन हो पाएगा क्या? दोनों आपस में कनेक्ट है, बोथ आर स्पीकिंग. सी, उसने इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दिया, बी ने फ्रेंच में बोलना स्टार्ट कर दिया, बट बोथ आर कनेक्टेड, बोथ हैव स्टार्टेड स्पीकिंग आल्सो, बट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है. तो प्रोटोकॉल मीनिंग, प्रोटोकॉल का क्या मीनिंग है? इट इज द सेट ऑफ रूल्स that is to be followed during data communication. इसीलिए क्या होता है, जो डिवाइसेस है हमारे, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर आल्सो, कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि मेरा कंप्यूटर क्या लैंग्वेज समझता है, ये एनकोडिंग मैकेनिज्म समझता है, दूसरा कंप्यूटर कुछ और एनकोडिंग मैकेनिज्म समझता है. ठीक है, तो जब दो पार्टी को आपस में कम्युनिकेट करना है तो कुछ रूल सेट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? जो रूल सेट होता है ना पार्टीज के बीच में, कम्युनिकेटिंग पार्टीज के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल. अगर रूल सेट नहीं होगा तो कम्युनिकेटिंग पार्टीज आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, इट इज लाइक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज टू बी फॉलोड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज टू बी फॉलोड. अब इसे यहाँ पे क्या सिनेरियो है, SMTP is a push protocol used to send the email. ये प्रोटोकॉल के हेल्प से ईमेल सेंड कर पाते हैं हम लोग.
ठीक है, we are able to send email with the help of this protocol SMTP. POP और IMAP are used to retrieve those emails. email send करना, send करने के बाद retrieve करना, मतलब fetch करना. एक बार send करने के बाद receive भी तो होना चाहिए, right? तो email retrieve करने के लिए receiver side, receiver क्या करता है, email को retrieve करता है, means receive करता है. सेंडर क्या करता है, ईमेल को सेंड करता है, रिसीवर ईमेल को रिट्राइव करता है, रिसीव करता है. तो एसएमटीपी का प्रोटोकॉल का काम ये है कि यूज टू सेंड द ईमेल, whereas POP और IMAP are used to retrieve those emails at the receiver side. अभी तुम लोग ये प्रोटोकॉल क्या है? See, if you will observe, see, this is the URL, मतलब दिस इज द एड्रेस ऑफ दिस पेज. नारायण गुरु पेज का ये क्या एड्रेस है? यहाँ पे देखो क्या लिखा है, HTTPS. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. S का मीनिंग है सिक्योर, S का मीनिंग है सिक्योर. फिर ये नारायण गुरु पेज का ये एड्रेस है वेबसाइट का. तो ये HTTP प्रोटोकॉल जो तुम देखते हो पेज पे, ब्राउजर के एड्रेस पे, ठीक है, बहुत बार तुम ये पेज पे देखते हो HTTP लिखा हुआ आगे. तो ये प्रोटोकॉल का ये काम है, पेज को ये करना, वेब पेज को एक्सेस करने के लिए हेल्प करना. वेब पेज जो है, वेबसाइट है, उसको एक्सेस करने के लिए हेल्प करना. ठीक है, हम लोग जो वेब पेज, वेबसाइट जो एक्सेस कर पा रहे हैं, ये प्रोटोकॉल HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू ही कर पा रहे हैं. ठीक है, HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू ही हम लोग वेब पेज, वेबसाइट जो भी है इंटरनेट पे, वी आर एबल टू एक्सेस इट. ठीक है, अभी तुम कोई और टाइप भी करोगे, सी Amazon, this is Amazon site, this first one amazon.in. okay, यहाँ पे देखो अभी HTTP दिखा, HTTP. तो HTTP प्रोटोकॉल के हेल्प से ही यू आर एबल टू एक्सेस दी वेबसाइट और वेब पेजेस. तो वैसे ही हर एक फंक्शनैलिटी के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, मीन्स कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं. तो वैसे ही फॉर एग्जांपल ईमेल के लिए, ईमेल जो फंक्शन, ईमेल की जो फंक्शनैलिटी है, उसके लिए 3 प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं. उसके लिए 3 प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं ईमेल के लिए, SMTP, POP and IMAP. SMTP, POP and IMAP. Okay, SMTP protocol used to send the email, whereas POP or IMAP are used to retrieve those emails at the receiver side. Now see, email message format. It consists of 2 parts, header and body. Header means where we are writing the recipient address, that is okay, that is header, information about the message. एक होता है बॉडी होता है, हेडर होता है, एक बॉडी होता है. ठीक है, नाउ सी हेडर में क्या क्या आते हैं. हेडर कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रॉम, टू, डेट, सब्जेक्ट, CC, BCC. सी फ्रॉम मतलब डिस्क्राइब हु सेंड द मैसेज. फ्रॉम सेक्शन में क्या आता है, किसने मैसेज भेजा हम लोग को, वो फ्रॉम में आएगा ना. टू मतलब कौन से एड्रेस से मेल गया है, दैट इज टू एड्रेस. डेट में डेट आएगा, ठीक है, कौन से डेट पे गया है मैसेज. सब्जेक्ट लिखते हैं हम लोग बाय सेंडिंग द ईमेल, वे राइटिंग द सब्जेक्ट ना, मींस समरी. इट इज लाइक समरी ऑफ द मैसेज कंटेंट, राइट.
तो सब्जेक्ट हमेशा शॉर्ट होता है। देन सीसी का फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी, रिसिपिएंट कार्बन कॉपी। बीसीसी मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये प्रैक्टिकली आई विल शो यू सीसी बीसीसी क्या कहाँ पे है। अभी नाउ रिमेम्बर द फुल फॉर्म सीसी और बीसीसी, कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ये हेडर में ये सब इंफॉर्मेशन आते हैं। बॉडी में, बॉडी मीन्स बॉडी कंटेन्स द टेक्स्ट ऑफ द मैसेज एंड एनी अटैचमेंट टू बी सेंट। बॉडी क्या है, अगर तुमको कोई टेक्स्ट मैसेज लिखना है बॉडी में लिख सकते हो। अटैचमेंट, प्लस अटैचमेंट जो हम लोग अटैच करते हैं ना, लाइक वेदर इट इज पीडीएफ और एनी अदर फाइल, अटैचमेंट के थ्रू सेंड करते हैं हम लोग, राइट। तो वो बॉडी है। ईमेल के दो फॉर्म, फॉर्म नहीं फॉर्मेट, दो पार्ट्स है इसमें, दो पार्ट्स है, हेडर एंड बॉडी, हेडर एंड बॉडी। सी अभी नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू सेंड एन ईमेल, हाउ टू send an email. Okay, how to send an email. See, to send email, first thing मुझे बताओ यू क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है। कंप्यूटर विद इंटरनेट कनेक्शन, विदाउट इंटरनेट कनेक्शन कैन यू सेंड ईमेल? नहीं ना। ठीक है, तो टू सेंड ईमेल क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन भी रिक्वायर्ड, राइट। सेकेंड थिंग इज वी रिक्वायर्ड ईमेल अकाउंट ऑल्सो, ईमेल अकाउंट होना चाहिए हमारे पास। ईमेल अकाउंट होना चाहिए प्लस इंटरनेट कनेक्शन, ये दो रिक्वायरमेंट है टू सेंड ईमेल। तो मेरे पास अभी इंटरनेट कनेक्शन भी है एंड आई हैव द ईमेल अकाउंट आल्सो। ओके, सो आई कैन सेंड द ईमेल। क्या स्टेप्स है, फर्स्ट लॉग इन इनटू योर जीमेल अकाउंट, लॉग इन इनटू योर जीमेल अकाउंट। लॉग इन कैसे करना है, सी पहले ब्राउजर ओपन करो, एनी ब्राउजर। अब ये कौन सा ब्राउजर है मेरा, दिस ब्राउजर इज, कैन एनीवन टेल विच ब्राउजर इट इज, विच ब्राउजर इट इज, ब्राउजर कौन सा ब्राउजर है ये, गूगल क्रोम ब्राउजर, यस राइट। ये कौन सा ब्राउजर है मेरा, गूगल क्रोम ब्राउजर। फर्स्ट ओपन द ब्राउजर, ठीक है। लॉग इन इनटू योर जीमेल अकाउंट, अगर ये लॉग इन नहीं है, ठीक मैं साइन आउट कर रही पूरा अभी, साइन आउट ऑफ ऑल अकाउंट्स। फर्स्ट यू नीड टू साइन इन, साइन इन मीन्स लॉग इन, साइन इन मीन्स लॉग इन, ठीक है। अभी यहाँ पे ये ऑलरेडी एड अप है, मेरे यूज किए हुए अकाउंट है, यूज अनदर अकाउंट। enter your email id, enter your email id, then after entering your email id you have to enter your password। ठीक है, लॉग इन इनटू योर जीमेल अकाउंट कैसे लॉग इन करेंगे, बाय एंटरिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। नाउ वी हैव टू सी हाउ टू सेंड ईमेल, कैसे ईमेल सेंड करना है। तो लॉग इन हो गया अभी, ये दिख रहा है यहाँ पे आइकन बन के आ गया है, ठीक है। यहाँ पे तुमको क्लिक करना है जीमेल पे, जीमेल में कंपोज, ठीक है, क्लिक ऑन कंपोज।
कंपोज के बाद देखो, आफ्टर क्लिकिंग ऑन कंपोज एक न्यू तुम्हारा विंडो ओपन हो गया यहाँ पे। तो इन टू सेक्शन व्हाट यू विल राइट, टू सेक्शन में ईमेल एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, जिसको ईमेल भेजना है, ठीक है, ईमेल एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट। शिफा शेख 501, ठीक है, मेरा रेसिपिएंट ये है शिफा शेख 501@gmail.com। तो रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए टू सेंड ईमेल, ठीक है। तो इन टू सेक्शन क्या लिखना है हम लोग को, ईमेल एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट मींस जिसको मैसेज भेजना है उसका एड्रेस। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट लिखो, किस बारे में तुम मैसेज भेज रहे हो, अटैचमेंट तुम्हारा किससे रिलेटेड है, नोट्स, मॉड्यूल मॉड्यूल 1 नोट्स, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, बॉडी है, ठीक है। बॉडी में तुम यहाँ पे कुछ टाइप कर सकते हो मैसेज, कुछ भी, एनीथिंग इफ यू वांट टू टाइप, आई एम सेंडिंग, कुछ भी। ये बॉडी है, ठीक है। बॉडी में क्या क्या आएगा, अटैचमेंट भी आएगा, सी अभी यहाँ पे वन बाय वन। ये जो सिंबल है ये अटैच फाइल का है, ये सिंबल क्या है, अटैच फाइल का है। तो तुम यहाँ इसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, फाइल अटैच कर सकते हो। सी आई एम क्लिकिंग ऑन दिस नाउ, अटैच फाइल। ये क्लिक करते ही तुम्हारे सिस्टम का ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो तुम्हारे सिस्टम में से कौन सा फाइल तुमको अटैच करना है, मीन्स कौन सा फाइल सेंड करना है, दैट इज अटैचमेंट। तो बहुत सारे फोल्डर्स है कंप्यूटर में, मेरे डॉक्यूमेंट्स हो गया, डाउनलोड्स में से मुझे कुछ भेजना है या डी ड्राइव में से, ठीक है। जो फाइल तुमको भेजना है तुम वो भेज सकते हो। ये फाइल मैंने सिलेक्ट कर दी थी, पीपीटी है, पीपीटी है ये। सिलेक्ट करने के बाद फाइल ओपन करना है, ठीक है। ओपन हो गया, देन उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन सेंड बटन, यू हैव टू क्लिक ऑन सेंड बटन। तो सिंपल है ईमेल सेंड करना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो दिस ना, कैसे ईमेल सेंड करना है। नाउ सी, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ईमेल सेंड हो जाएगा। सेंड कर देती हूँ, चलो मैं कौन सा एड्रेस, शिफा शेख 501@gmail.com, सेंड। तो इन सेंड ऑप्शन सी यहाँ पे इनबॉक्स स्टार्ट स्नूज स्नूज सेंट, सेंट में यू कैन सी गया है क्या तुम्हारा मेल। हाँ यहाँ पे गया है, देखो टाइमिंग के साथ में श्योर 11 AM को सेंड हुआ है। ये तुम्हारा ये था, बॉडी था, सब्जेक्ट मॉड्यूल 1 नोट्स है, ये अटैचमेंट है, ये क्या अटैचमेंट है, ठीक है। नाउ सी, कंपोज अगेन, आई एम शोइंग वन वन थिंग, सीसी क्या होता है, व्हाट इज कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, फर्स्ट विल सी व्हाट इज कार्बन कॉपी। अभी देखो, टू आई एम सेंडिंग ईमेल एड्रेस, रिसिपिएंट ईमेल एड्रेस, जिसको ईमेल भेजना है। अभी देखो हम लोग कार्बन कॉपी में मैं किसी को अगर रखती हूँ, आई एम क्लिकिंग ऑन दिस नाउ, सी सी सी, कहाँ क्लिक करी मैंने, सी सी, सी सी में नाउ आई एम एडिंग अनदर ईमेल एड्रेस। किसका टाइप करूँ, मेरा ही ईमेल आईडी है। सी, इसका एडवांटेज क्या है, सी सी समझो, हाँ कार्बन कॉपी का क्या मीनिंग है। जो कार्बन कॉपी में जो तुम ईमेल एड्रेस ऐड कर रहे हो, एडिंग एन ईमेल एड्रेस टू दी सीसी फील्ड means that person will receive a copy of the email। इसको भी ईमेल मिलेगा मेरा मैसेज जो भी अटैचमेंट है, और शिफा शेख को भी मैसेज मिलेगा, एंड नाई शेख जो ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी पे भी मैसेज मिलेगा। तो ये कहाँ पे यूज होता है, ये समझ, दोनों को सेम ही मिलेगा। जो मैं अटैचमेंट यहाँ पे अटैच करूंगी, वेदर इट इज एनी फाइल, पीडीएफ, ऑडियो, इमेज, दोनों को ही मिलेगा। तो समटाइम्स क्या होता है कि समझो एक कमिटी है, कार्बन कॉपी में हम लोग कब ऐड करते हैं, कमिटी है, तो कमिटी को रिपोर्ट भेजना है मैनेजमेंट को। तो टू
मैनेजमेंट का ईमेल आईडी जो है वो आएगा। अब कार्बन कॉपी में मैं किसका रखूंगी, कमेटी का जो इंचार्ज है वो अपने मेंबर्स को रखेगा, उनके ईमेल आईडी, उन मेंबर्स की ईमेल आईडी यहाँ पे आएंगे कार्बन कॉपी में। मतलब तुम्हारे भी रेफरेंस के लिए ये है, समझ रहे हो। रेफरेंस के लिए, जिसको रेफरेंस के लिए भेजना है, जो पार्ट है वो चीज का, उसको हम लोग कार्बन कॉपी में रखते हैं। और टू में जो मेन पर्सन है जिसको हम लोग भेजना चाहते हैं उसको रखते हैं टू में। पर ये चीज याद रखो, दोनों को सेम ही मैसेज मिलेंगे। हाँ, जो मैं यहाँ पे अटैचमेंट करूंगी दोनों को सेम ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि इसको कुछ अलग इसको कुछ अलग, ऐसा नहीं है। तो कार्बन कॉपी में मीन्स एक कॉपी तुम रेफरेंस किसी और को भी ऐड कर रहे। So adding an email address to the CC field means that the person will receive a copy of the email. ठीक है। Then subject ऐड करो, add subject, then same attachment और send कर दो। कार्बन कॉपी क्लियर है। ये क्या है, CC stands for कार्बन कॉपी। See, I am sending email again कार्बन कॉपी में, शिफा शेख एंड कार्बन कॉपी में नाइस शेख। मॉड्यूल सब्जेक्ट आई एम राइटिंग मॉड्यूल 2 नोट्स, वेब ब्राउजर नोट्स। देन अटैचमेंट, I am selecting any file now, LAN, MAN, WAN. First select the file which you want to send, huh? Then click on open और सेंड कर दो। किसको गया मैसेज, सेंट में यू कैन सी, ये फर्स्ट वाला, ये देखो ये एरो दिख रहा है, डाउन एरो, फ्रॉम, मतलब मेरा ईमेल एड्रेस है ये, फ्रॉम एन शेख 7666 से किसको भेजी मैंने, टू शिफा शेख, और सीसी में किसको रखी मैंने, नाई शेख 13 को। ठीक है। तो अगर देखो, अगर मैं नाई शेख 13 वाला ईमेल आईडी ओपन कर रही हूँ, शिफा शेख का नहीं ओपन कर सकती मैं, नाई शेख मेरा ही अकाउंट है। शेयर, पासवर्ड भूल गई मैं, अलविरा। सी, ये कौन सा अकाउंट लॉगिन हुआ है, नाई शेख 13 जो मैंने सीसी में रखी थी। यहाँ पे देखो मुझे नोट्स आया है, वेब ब्राउजर नोट्स। तो मैं दूसरी, मैं कौन हूँ, मैं रिसीवर ही हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं अगर देखूंगी कहाँ से आया मुझे, फ्रॉम एन शेख 7666 से मुझे मेल आया है। और मुझे ये भी पता चलेगा कि सिर्फ मुझे नहीं भेजा गया है मेल, मुझे सीसी में रखा गया है नाई शेख 13 को। और टू में किसको भेजा गया है, शिफा शेख 501 को भेजा गया है। तो मुझे सीसी वालों को ये भी पता चलता है कि और किसी को भेजा गया है क्या, मतलब टू सेक्शन में किसको भेजा गया है, उनका ईमेल आईडी दिखाई देता है सीसी वालों को। अभी मैं सीसी हूँ ना, नाइट शेख 13, ये बात याद रखो क्योंकि बीसीसी में यूज होगा ये चीज। सीसी वाला पर्सन जो है उसको दिखाई देगा कि टू सेक्शन में किसको भेजा गया है। और ये शिफा शेख को भी दिखाई देगा कि सीसी में किसको रखा गया है। शिफा शेख 501 अगर अपना लॉगिन
वो शिफा शेख 501 अपना लॉगिन अगर करेगी तो उसको ये दिखाई देगा कि सीसी में किसको रखा गया है और किसको भेजा गया ईमेल। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा हाउ टू सेंड ईमेल। इतना क्लियर है सबको टिल नाउ? वी हैव टू सी बीसीसी आल्सो, ब्लाइंड कार्बन कॉपी और कार्बन कॉपी में क्या डिफरेंस है। यस,